Hello everyone, in this video we will discuss the important concept of metals and non-metals. This is the part 2 video. In part 1 already I have discussed the chemical properties, the physical properties and the questions which can be framed from that topic. बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में कहा मैम आप इन ऐसी वीडियोस और बनाएं और चैप्टर्स की भी बनाएं, तो अब सेकेंड हाफ चैप्टर का इस वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाली हूँ. सो द फर्स्ट टॉपिक इज हियर, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. What type of a question can be framed from this page, I can say. So the first part here is the first basic question, why noble gas do not react. So first you must know what are the noble gases. So these three examples where outermost shell is completely filled. So you must know the three examples of noble gases, their electronic configuration. Now the question here is why noble gas do not react, because their outermost shell is already completely filled. This can be framed from this part. Now the second half, why metals or non-metals reacts. So every metal or non-metal what tends to attain a noble gas configuration, that is why they react. So they want to attain a noble gas configuration. Now the next, a simple and the basic concept of this chapter, that you must know how to write the Lewis dot symbol for first 20 element. So here what is the valence electron in case of hydrogen? 1. So symbol will be H1 dot. Helium 2 is in the outermost shell. So 2 will be the dot. Lithium में 1 dot. Beryllium 2. Boron is atomic number 5. तो configuration कितनी हो जाएगी? 2, 3. तो 3 will be the dot. मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ सिली मिस्टेक करते हैं कि वैलेंसी लगा देते हैं डॉट में, जबकि वैलेंसी नहीं लगानी है. आपको आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट यू हैव टू जस्ट राइट इन अ फॉर्म ऑफ डॉट. सो फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन हैज अ 7 एटॉमिक नंबर 17, तो 2, 8, 7, 7 इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल जिसको हम बोलेंगे. तो जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही डॉट लगेंगे. तो क्लोरीन में भी 7 और फ्लोरीन में भी 7. तो यहाँ तक के टॉपिक से 4 क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए. फर्स्ट, वाई नोबल गैस डू नॉट रिएक्ट, वाई मेटल रिएक्ट, वाई नॉन मेटल रिएक्ट, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ noble gases and how to write the electron dot structure of each element. ठीक है. Now the next important concept here is, and the question of 1 mark, define ionic bond, defining ionic compound or how it is formed. So the compound which is formed by transfer of electron, ये सबसे shortest definition है. So ionic compound, the compound which is formed by transfer of electron. What is a ionic bond or a electrovalent bond? The bond which is formed by transfer of electron. So in this case transfer में metal हमेशा cation बनाता है, non metal हमेशा anion बनाता है. Because of that positive and negative charge they will be attract towards each other, and that bond is a very strong because of this electrostatic force of attraction. So ionic compound और ionic bond की definition और उससे रिलेटेड ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल रीजनिंग क्वेश्चन में बहुत पूछी जाती हैं. जैसे वाई आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट, रीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इज ये सॉल्युबल इन वाटर? यस. सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. पोलर मतलब आयनिक, जिसमें आयंस प्रेजेंट होंगे ये सॉल्युबल हो जाएंगे. कंडक्टर, दे आर कंडक्टर इन अ मोल्टन स्टेट बट इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कोई भी आयन नहीं होती है, देयर इज नो आयन प्रेजेंट, हेंस इट इज इंसुलेटर. ठीक है. अब वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज? सो दिस इज द क्वेश्चन. एंड व्हाट अदर क्वेश्चन कैन बी फ्रेम, दैट इज हाउ Na2O formed, how Ca formed. So you have to just write their electron dot structure, then you have to show the transfer here. Just for example, Na say Na dot, Cl minus Cl, so here one dot is transferring into this Cl forming NaCl. For example, in calcium 2 is the outermost shell, oxygen having 6, so 2 electron will be transferred here forming CO. Now next question can be framed, what are the ions present in this? So here Na plus O2 minus, Ca2 plus O2 minus. तो आपको यहाँ पे 3 से 4 कंपाउंड है आयनिक, Na2O, CaO, MgO, AlCl3, NaCl, MgCl2, इन सभी का आपको आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन आनी चाहिए. सो यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है. आपको ये डाटा गिवन होगा और वाई दे पोजेस द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट,
In case of we can say CaO, why it is highest? Because maximum charge होगा 2+2+ का, it will be having high melting point or we can say the boiling point. ऐसे ही आयनिक क्या कंडक्ट करेगा molten state में? Yes, it will be good conductor in the molten state. And it also show color while heating. उसका रीज़न ये होता है इट कैन ईजिली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन. तो जितने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फ्लेम में कलर देते हैं. सो दीज इंटेक्स क्वेश्चन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया. फर्स्ट 20 एलिमेंट का आपको डॉट स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए. देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी शो किया मैंने. व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट? इन दिस केस Mg2+, O2-. And why do ionic compounds have high melting point? Because of strong electrostatic force of metal. ठीक है. Now next topic is the metallurgy or we can say occurrence of metal. So metal in nature exists in we can say free state or in a combined state. So metal lie low in the reactivity series like the gold, platinum. They all exist in a free state because they do not react with each other. But the metal high in the series, for example potassium, sodium, aluminium, they react with oxygen, carbon dioxide and sulfur and form their oxide. So they exist as sulfide, carbonate or oxide. Now there are some general definition you must learn from this topic which can be framed in a reasoning and assertion question. For example, what are minerals? So minerals are the compounds of metal present in earth crust. So compound of metals present in earth crust is termed as a mineral, and the mineral from which metal can be extracted economically or beneficially is termed as an ore. So in ores they can exist as sulfide ore, carbonate ore, oxide ore. So you must learn the examples of few sulfide, carbonate and oxide. And on the basis of reactivity series they all are separated, and the separation technique is known as an metallurgy. So the stepwise process of obtaining metal from its ore. Define metallurgy. It is a stepwise process of obtaining metal from its ore is known as a metallurgy, and the impurity present in ore is known as an gangue. Ores are found mixed with earthy impurities like soil, sand, etc. This is gangue. The gangue is removed from the ore. So अगर एक सिंपल फ्लो चार्ट से करें तो मिनरल है. फ्रॉम मिनरल वी आर गेटिंग द ओर. फ्रॉम द ओर वी आर रिमूविंग द गैंग पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब गैंग जो हो सकता है वो सॉइल की फॉर्म में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल किसी मेटल में आयरन एज इन गैंग अगर प्रेजेंट होगा देन इट विल बी ईजिली सेपरेटेड बाय द मैग्नेट. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और गैंग फ्रॉम द ओर कैन बी रिमूव्ड. ठीक है. अब और 3 टाइप्स के हैं जैसे मैंने बताया. इट कैन बी एग्जिस्ट इन सल्फाइड, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट. तो मेटल सल्फाइड एग्जिस्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड एग्जिस्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट. तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा इन सभी से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना. सो एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया है कि हाई इन सीरीज, लो इन सीरीज और मॉडरेट इन सीरीज को कैसे सेपरेट करेंगे. बट यहाँ पे मैं आपको जनरल टेक्निक बता रही हूँ कि कैसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं. ठीक है. तो मिनरल से कोई भी ओर से हमें 3 फॉर्म में मिलेगा, या तो सल्फाइड या ऑक्साइड या कार्बोनेट. तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप है अगर कार्बोनेट है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, अगर सल्फाइड है तब भी उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना. ठीक है. तो कार्बोनेट जैसे हो गया आपका ZnCO3, जिंक कार्बोनेट. ठीक है. या CaCO3. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हीट कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर. तो CaCO3 व्हेन हीटेड इट विल फॉर्मिंग CaO + CO2. तो हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इवॉल्व इज नोन एज अ कैल्सिनेशन. तो ये डिफरेंस आता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का. तो व्हाट इज अ कैल्सिनेशन? हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ये किसके लिए यूज किया जाता है? कार्बोनेट ओर के लिए. कौन सी गैस इवॉल्व होती है? CO2. अब आ जाते हैं मेटल सल्फाइड. मान लीजिए जिंक सल्फाइड है ZnS. तो अब हम इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ZnS + O2 क्या फॉर्म करेगा? ZnO प्लस इवॉल्व कौन सी गैस होगी? SO2. तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे? हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके लिए यूज किया जाता है? मेटल सल्फाइड के लिए. कौन सी गैस इवॉल्व होती है? SO2. तो इट कैन बी इजिली फ्रेम्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन. नेम द गैस इवॉल्व इन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग. और आपको कोई भी नीचे और दे दी होगी और पूछा जाएगा रोस्टिंग किस पे लगेगी. तो जहाँ सल्फाइड प्रेजेंट है वहाँ रोस्टिंग लगेगी, जहाँ कार्बोनेट प्रेजेंट है, CO3 प्रेजेंट है, वहाँ पे कैल्सिनेशन फॉर्म होगा. अब इस सारी प्रोसेस से जो भी ऑक्साइड थी, फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट था तो ZnO बन गया. अगर जिंक सल्फाइड था या कॉपर सल्फाइड था तो CuO बन गया. अब ऑक्साइड की हम रिडक्शन करेंगे. रिडक्शन कैन बी
by carbon or by the more reactive metal. So finally metal obtained होगा और उसकी रिफाइनिंग करेंगे. तो बेसिकली ये 3 स्टेप है. मिनरल से ओर से गैंग रिमूव किया तो या तो सल्फाइड होगा या ऑक्साइड होगा या कार्बोनेट. सबको किस में चेंज करना है? ऑक्साइड. ऑक्साइड की क्या करनी है? रिडक्शन. तो रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो डायरेक्टली हमें मेटल मिल जाएगा. या हम सिंपल बोलें एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगा दिया, वेयर मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, तो उसे हमें क्या मिल गया? मेटल. अब हम मेटल की क्या करेंगे? रिफाइनिंग, जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा. अब देखिए ये CBSE में कैसे क्वेश्चन आया कि आपको एक सिनेबार ओर का पूरी मेटलर्जी एक्सप्लेन करनी है. तो पहला एग्जाम्पल है सिनेबार का, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो सिनेबार ये NCERT का गिवन एग्जाम्पल था और बच्चे नहीं कर पाए थे क्योंकि बच्चे रीड ही नहीं करते हैं पैराग्राफ. ठीक है, तो सिनेबार इज HgS, इट इज एन ओर ऑफ मरकरी. तो HgS है, सल्फाइड है, तो सल्फाइड की क्या करेंगे हम? रोस्टिंग, दैट इज हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो HgO बन गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीजन को हमें रिमूव करना है. तो अब हमने इसको फर्दर रिमूव कर दिया, इसकी रिडक्शन कर दी, तो Hg + O2 आ गया और फर्दर हमने इसकी रिफाइनिंग कर दी. ठीक है, तो इस तरह से इसका फ्लो चार्ट बनेगा. जस्ट सी टू इट. सल्फाइड है तो सल्फाइड से पहले क्या बनाना है? ऑक्साइड. ऑक्साइड से रिडक्शन किया मेटल, और मेटल की हमने की रिफाइनिंग. तो HgS से बना HgO की रिडक्शन की तो Hg, इसकी रिफाइनिंग की तो Hg प्योर मिला. ऐसे ही अगर हमारे पास कॉपर सल्फाइड है तो कॉपर सल्फाइड को जब हमने हीट किया तो ऑक्साइड बना. अब ये 2 स्टेप का रिएक्शन है. ये सेपरेटली एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें आपको लर्न करना है कि कॉपर ऑक्साइड को फर्दर हम कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करते हैं. तो कॉपर सल्फाइड सिंपल रोस्टिंग हो रही है, पर जो ऑक्साइड बन रही है उसको फर्दर हम Cu2S के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है. तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, नीचे वाला पार्ट जिसमें आपको रिएक्शन लिखना था. तो ये एक्सेप्शनल पार्ट है. यू मस्ट लर्न कि सल्फाइड की रोस्टिंग होती है और फर्दर उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है. तो ये थे लो इन द सीरीज. अब अगर हम बोलते हैं मिडल इन सीरीज, अगेन मिडल या तो सल्फाइड होगा या कार्बोनेट होगा. तो रोस्टिंग हुई तो प्रेजेंस में ऑक्साइड बना, कैल्सिनेशन हुई तो हीटिंग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई तो ZnO + CO2 बन गया. दोनों ही केस में ZnO बन रहा है. ठीक है, तो अब हमें ZnO से Zn बाहर निकालना है, O को रिमूव करना है. तो व्हाट वी यूज़ द कोक हेयर. तो हम रिडक्शन करेंगे. ये मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा किसी और से, या तो वो ऑक्साइड होगी या कार्बोनेट होगी या सल्फाइड होगी. तो आपको वैसे ही स्टेप्स लिखने हैं, 3 स्टेप, जैसे ये ऊपर इनिशियली दिया हुआ था. सल्फाइड, ऑक्साइड, मेटल रिफाइनिंग. अगर मान लीजिए कार्बोनेट होता तो कार्बोनेट की हम क्या करते? कैल्सिनेशन, और फिर होती ऑक्साइड, जैसे ये नीचे वाला एग्जाम्पल है. तो ये दोनों में से कोई एक स्टेप होगा. अगला स्टेप होगा रिडक्शन. रिडक्शन भी इन दोनों तरीकों में से हो सकता है, या तो यूजिंग कोक या यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल. और जो नीचे वाला रिएक्शन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये थर्माइट रिएक्शन है. Fe2O3 2Al फॉर्मिंग 2Fe + Al2O3. तो ये ज़रूर लर्न करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसका रीज़न ये है क्योंकि ये यूज़ किया जाता है to join the railway tracks. So 1 mark question can be framed. Write the reaction which is used to joining the railway tracks. So here Fe2O3, Al is more reactive than Fe. It will easily displace Fe here, forming 2Fe + Al2O3. तो ये आयरन की ऑक्साइड है जिसमें से हमने मेटल को बाहर निकाल दिया, और फिर फर्दर हम इसकी रिफाइनिंग करेंगे. तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ. अब हम इसकी रिफाइनिंग अलग से सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं, किसी भी मेटल की रिफाइनिंग, जिसमें सिर्फ, और ये खुद में 3 नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉपर, जिंक, टिन, किसी की भी रिफाइनिंग बोली जा सकती है. तो यहाँ पे हमेशा 2 इलेक्ट्रोड होंगी, कैथोड और एनोड. एनोड हमेशा इम्प्योर होगा, कैथोड हमेशा प्योर मेटल का होगा. ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन AO, ऐसे लर्न करना है, AOCR, A पहले आता है और R और O में O पहले आता है. तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो M से बनेगा M++ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन का मतलब गेन, तो M+ ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया. अब जिसका मेटल है उसी का इलेक्ट्रोलाइट होगा. तो जैसे अगर हम यहाँ पे कॉपर ले रहे हैं तो ये कॉपर सल्फेट हुआ, अगर रॉड जिंक ले रहे हैं तो जिंक सल्फेट हुआ. पैसेज ऑफ टाइम इम्प्योर वाली थिन होती जाएगी और नीचे इम्प्योरिटी कलेक्ट हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड. सो दिस इज अगेन अ 3 marks क्वेश्चन वेयर यू हैव टू एक्सप्लेन द रिफाइनिंग ऑफ मेटल. सो फर्स्ट यू विल राइट डाउन द impure metal is anode, the pure metal is cathode,
then oxidation reaction, then reduction reaction, then the metal salt is used as an electrolyte. As the current passes, with the passage of time, the size of anode decreases and pure metal is collected over cathode. So this is the refining part which can be applicable of any of the metal here. So in the book, example of copper is taken here. In case of silver, you can take AgNO3 solution, silver electrodes and AgNO3. So जो भी मेटल का रॉड होगा उसी मेटल का सॉल्ट होगा यहाँ पे, जिंक में जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है कि जिसमें हम NaCl की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग। अभी ये CBSE में डायरेक्टली 1 मार्क क्वेश्चन था कि एट कैथोड व्हाट हैपेंड, एट एनोड व्हाट हैपेंड। तो एट कैथोड सोडियम इज डिपॉजिटेड, एट एनोड Cl2 गैस इज रिलीज्ड। सो NaCl है, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की, Na+ आयन और Cl- बना, तो कैथोड, एट कैथोड Na+ डिपॉजिटेड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Na, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, सो इट विल ईजिली रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें रिएक्शन में स्पेसिफिकली ये पता होना चाहिए कि कैथोड पे क्या हो रहा है और एनोड पे क्या हो रहा है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज द कोरोजन, जिसमें यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट है, एक एक्टिविटी है। आई हैव जस्ट समराइज इट इन अ फॉर्म। कोरोजन क्या है? स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जो रस्ट होता है, आयरन की कोरोजन को रस्ट बोलते हैं, रस्ट रेड ब्राउन Fe2O3.XH2O। कॉपर के केस में ग्रीन कलर लेयर बनती है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, तो ये बेसिक होती है, ठीक है, इट इज़ अ ग्रीन कलर। सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सल्फाइड, तो AgS। तो बेसिकली आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये 3 टाइप की कोरोजन जो डिफरेंट मेटल्स में होती है उनका क्या क्या कलर होता है, ये बेसिक नेचर की होती है, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट इसमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर्ड एन एयर, वी रिक्वायर्ड अ वाटर, सो दीज आर द कंडीशन विच इज़ नेसेसरी फॉर कोरोजन, एयर एंड वाटर। अब जो नेक्स्ट पेज है उसमें सारे कोरोजन की प्रिवेंशन बताए हैं, एलॉय बताए हैं, गोल्ड, प्योर गोल्ड क्या होता है, तो उसके डिफरेंट एग्जांपल्स में क्वेश्चन कैसे हैं, प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन क्या है? बाय कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ अ जिंक। तो अभी हम आयरन आर्टिकल को अगर जिंक से कोट कर देंगे देन इट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन। एलॉय क्या होते हैं? क्लास 9 यू हैव ऑलरेडी डन, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स। अब यहाँ पे कुछ अलॉयज हैं, उनकी कॉम्पोजिशन आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखो, ब्रास और ब्रॉन्ज को लर्न करने का बेसिक तरीका, दोनों ही केसेस में कॉपर प्रेजेंट है, 1 मेटल। ब्रॉन्ज में Z लिखा है ना, तो जिंक नहीं होता, ब्रास में जिंक होता है, ब्रॉन्ज में टिन होता है। तो ब्रॉन्ज आपको याद रहेगा, कॉपर तो है ही है, और क्या नहीं है, जिंक नहीं है, तो क्या बचा? टिन। और ब्रास में कॉपर एंड जिंक। एमलगम किसी भी चीज़ का हो, सोडियम एमलगम, तो मतलब सोडियम मेटल प्लस मरकरी। एमलगम मतलब ही होता है, मीनिंग ही उसका होता है कि सेकेंड मेटल इज द मरकरी। सोल्डर, लेड एंड टिन, स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल, क्रोमियम एंड कॉपर। तो अब जो अभी हमने मेटल एंड नॉन मेटल ऑलरेडी 2 वीडियोस में डिस्कस किया है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स क्वेश्चन के साथ साथ जो लाइन वाइज मैंने अभी आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो आप ज़रूर करें, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा कि मैम PDF भी अपलोड कर दें, तो मैं डिस्क्रिप्शन में PDF भी अपलोड कर दूंगी जो शीट मैंने यहाँ पे डिस्कस यूज़ की है। बट आप ये NCERT एक्सरसाइज और जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, काइंडली अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स आप इस चैप्टर में अटेन कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।